Good morning, everyone. Myself, Devki Shetty, Assistant Professor, Shri Narayan Guru College, Chembur. We have already discussed. Let me just do a revision. One minute. We have discussed the syllabus in the last lecture. You all have this many topics in front of your screen. And we had also discussed the paper pattern as prescribed by Mumbai University. If it will be an offline exam, this will be the pattern. And if it's an online exam, then last year it was like 50 questions were there, 1 marks each. And then when the result was prepared, it was out of that 50 was converted into 100. So if it's a online, then last year pattern was like that. 50 questions are 1 marks each, and then later 50 marks was converted into 100. If it's a offline exam, this is a 100 marks pattern, 3 hours exam. And I had also told you textbook what you should buy in the last lecture. I had told you that it should be Aina Pure is the author. And if you go for the publication, then the publication of Aina Pure book is Manan Prakashan. तो मनन प्रकाशन का बुक ले सकते हो जिसका ऑथर है आईना पुरी. And we had discussed with our first chapter inventory valuation, that is valuing the inventory. Inventory means stock. I had explained you that what is the meaning of inventory. Inventory refers to the goods in which the business or the businessman deals with. How do we record the books? How we record stock in the books? We record in the trading account credit side and also in the asset side. Stock is recorded as closing stock. Why is it important to stock value the stock? Importance of stock valuation, so that we get the proper value of assets. If we see, when we record the stock in the asset side, when we show stock in the asset side, we get the proper value of the assets. अगर नहीं शो करेंगे स्टॉक को असेट साइड में तो हमें असेट्स का प्रॉपर वैल्यू नहीं पता चलेगा, बिकॉज स्टॉक इज ऑल्सो असेट जो फ्यूचर में सेल होगा तो हमें पैसे मिलेंगे. अनसोल्ड गुड्स इज नोन एज स्टॉक. देन अगर हम स्टॉक प्रॉपरली वैल्यू नहीं करेंगे तो हमें प्रॉपर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा. Till here we have done in the last lecture. Today we will start with the systems of inventory valuation. There are 2 systems of inventory valuation. First one is known as periodic system of inventory. Periodic system of inventory में क्या होता है? We take in the under the periodic inventory system, closing stock is calculated by taking an actual physical count of all the inventory items on hand on a particular date. मतलब periodic system of inventory में हम क्या करते हैं? हम personal या physical verification करते हैं of each and every stock. Then tell me, ये एडवांटेज इसका ये है कि ऐसा करने से आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड इट इज लेस एक्सपेंसिव ऑल्सो. आपको क्या करना है, जाकर यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू काउंट द स्टॉक. आपको क्या करना है, स्टॉक को काउंट करना है. तो इट इज you will get a accurate or correct information, and this is also not so expensive. Periodic inventory, periodic system of inventory में हम क्या करते हैं, we take a count of the, we take a physical count. What we do closing stock is calculated by taking an actual physical count of all the inventory items in hand on a particular date. Means कोई भी डेट में हम जाकर
फिजिकली स्टॉक को वेरीफाई करते हैं, हम स्टॉक को जाकर खुद से वी डू अ वेरिफिकेशन, चेकिंग करते हैं कि कितना गुड्स है। लेकिन सी देर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, कि अगर हम स्टॉक को काउंट करने जाएंगे तो हमारे जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उस पे there will be disturbance, means we are going and daily taking a count of our stock, then our regular business activities will be affected, and then it becomes it becomes more expensive if the income statements are required more frequently. अगर हमें इनकम स्टेटमेंट लेने के लिए अगर एक बार करना ठीक है, लेकिन बार बार फिजिकली वेरीफाई करना, देन दिस ऑल्सो बिकम्स एक्सपेंसिव। सो कंट्रोल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये सिस्टम में बार बार हम जाकर काउंटिंग करेंगे कितना स्टॉक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट इन दिस सिस्टम। देन देयर इज वन मोर सिस्टम which is perpetual system of inventory. Perpetual system of inventory में हम क्या करते हैं, under the perpetual inventory system, closing stock is ascertained, closing stock is calculated not by taking physical count. यहाँ पे हम physically every inventory को count नहीं करते, but what we do, but from the stock ledger itself after each receipt and issue. What we in this chapter, what we will be doing is we will be preparing the stock register. What is the stock register? Stock register is prepared by the warehouse keeper. देखो हर एक warehouse में एक warehouse keeper होता है जो कि क्या करता है, stock register या stock ledger maintain करता है। उसमें वो क्या record करता है कि कितने इन्वेंट्री का रिसीट हुआ, दैट इज कितना इन्वेंट्री परचेस हुआ, एंड उसमें से कितना इन्वेंट्री, कितना स्टॉक सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, कितना सेल हुआ। तो परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री में हम फिजिकली वेयरहाउस में जाके एक एक गुड्स को काउंट नहीं करते, बट हम स्टॉक रजिस्टर को वेरीफाई करते हैं, हम स्टॉक रजिस्टर को चेक करते हैं, वी चेक द स्टॉक रजिस्टर एंड देन वी फाइंड आउट हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक? Closing stock means stock at the end of the accounting period. Accounting period के end में कितना स्टॉक है हमारे पास, वो चेक करने के लिए हम स्टॉक लेजर अकाउंट को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और हमें समझ में आता है इतना रिसीट हुआ है, इतना सेल हुआ है, तो बैलेंस इतना होना चाहिए। तो कोई भी पीरियड ऑफ टाइम पे हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम स्टॉक लेजर अकाउंट में चेक करेंगे कि इतना इतना परचेसेस किया, इतना सेल किया, तो इतना बैलेंस होना चाहिए। दैट वी फाइंड आउट विदाउट डूइंग अ फिजिकल वेरिफिकेशन। बट इन पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, हम पर्सनली वेयरहाउस में जाते हैं, एक एक स्टॉक को काउंट करते हैं, और हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना अनसोल्ड स्टॉक बचा है, कितना अनयूज्ड स्टॉक बचा है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब उसको अनसोल्ड भी बोल सकते हैं, अनयूज्ड स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो उसे वो कितना हमारे पास है वो चेक करने के लिए पीरियोडिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, वी डू अ फिजिकल काउंट। फिजिकली जाते हैं वेयरहाउस में, काउंटिंग करते हैं, पर परपेचुअल सिस्टम में हम फिजिकली काउंट नहीं करते, हम बुक्स को चेक करते हैं। वी चेक द स्टॉक लेजर एंड वी कम टू अ कंक्लूजन कि इतना स्टॉक बचा होना चाहिए। समझ में आया? इतना स्टॉक बचा होना चाहिए। दैट वी कम टू अ conclusion by checking the stock ledger. So with this now I will go to the next slide. There are two methods in stock valuation. Stock को value करने का दो methods है। One जिसको हम बोलते हैं
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, and second method is known as weighted average cost method. So there are two methods. One is known as first in first out method, and second one is known as weighted average cost method. There is one more method which is not there for in your syllabus. It is known as last in first out method, which is known as LIFO method. But LIFO method आपको ये subject के syllabus में नहीं है. You don't have LIFO method. You have only two method. First in first out जिसको हम FIFO बोलते हैं. FIFO means first in first out, and we have the second method, weighted average cost. You do not have the LIFO method. Now what do you mean by first in first out method? मतलब ये मेथड में हमने जितने भी स्टॉक को खरीदा है, जो पहले खरीदा है वो पहले सेल करेंगे, जो पहले खरीदा है वो पहले इशू करेंगे. मीन्स यहाँ पे ये मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी स्टॉक को पहले परचेज किया था वो पहले सेल या इशू करते हैं. द स्टॉक विच इज परचेज्ड फर्स्ट गोस आउट फर्स्ट. द नेम इटसेल्फ सेज जो भी स्टॉक को हमने पहले परचेज किया है दैट विल बी सोल्ड ऑल्सो फर्स्ट. दिस टाइप ऑफ मेथड is very simple to calculate, and also this method is suitable for perishable goods. Perishable goods क्या होता है? Do all of you know? Perishable goods are those goods जो कि जल्दी खराब हो सकता है, जिसका शेल्फ लाइफ कम होता है, उसको हम बोलते हैं perishable goods. Like fruits, vegetables, dairy products, all are perishable goods जिसको हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में फॉलो कर सकते हैं. मीन जो पहले आया था, जो पहले मैन्युफैक्चर हुआ है, जो पहले खरीदा है वो पहले सेल कर दो, बिकॉज उसका लाइफ स्पैन कम है तो हम लोग ज्यादा दिन तक उसको स्टोर नहीं कर सकते. तो ऐसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड is feasible, should be followed. First in first out method should be followed for perishable goods which have a short lifespan. Then we have next method which is known as weighted average cost. यहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा पहले आया था वही पहले बाहर जाना है. हम रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट को बाहर सेल करते हैं. हम ये नहीं सोचते कि ये पहले आया था तो ये गुड्स ही पहले जाएगा. अंडर weighted average method randomly goods are sold. randomly मतलब random मतलब क्या? there is no anything, मतलब कोई भी गुड्स पहले बाहर गया तो उसमें it is just a coincidence, it's just a chance. there is no like planning कि पहले आया था तो पहले ही जाना चाहिए. रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट्स को उठाकर हम सेल करते हैं, ये नहीं सोचते ये पहले आया था तो यही पहले बाहर जाना चाहिए, यही पहले सेल होना चाहिए. weighted average cost method में any product which is purchased any time can be sold, which is manufactured any time can be sold. there is no situation जो पहले ही खरीदा था वही पहले जाएगा. और जो प्राइस है वो भी हम एवरेज निकालते हैं. देखो जितने बार भी हम खरीदेंगे प्राइस अलग हो सकता है, बट हम इस पे एवरेज प्राइस से सेल करते हैं. सेल मतलब ट्रांसफर करते वक्त, गुड्स को बाहर इशू करते वक्त हम एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं. वो कैसे करना है दैट आई विल शो व्हेन वी विल स्टार्ट विद द सम्स. इसका प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है वो हम जब भी ये प्रोडक्ट का जब हम ये मेथड का सम्स करेंगे तब आई विल शो यू. दीज आर द टू मेथड्स. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सम. See, this is the sum we will do now. In front of your screen, this is the sum, and it is just a request to all of you. Just listen now.
Do not do anything. I want your full concentration. I want your 100% concentration now. Just look here what we are doing. From the following particulars, prepare stock ledger by FIFO method. मतलब हम लोग अभी क्या करेंगे, स्टॉक लेजर प्रिपेयर करेंगे. एंड कौन से मेथड से प्रिपेयर करेंगे? बाय FIFO मेथड. सो व्हाट इज इट? सी देयर आर सम डेट्स गिवन. क्वेश्चन में डेट्स दिया है. क्या डेट्स हैं? सबसे पहले 4th January 2014. What is the transaction? Purchase has been done. How many unit? 40 units. Units मतलब quantity. कितना number of units खरीदा कोई भी product का? 40 units. And at what rate have we purchased this 40 units? At ₹30 per unit. हमने क्या किया है? 30 rupees per unit में हमने खरीदा है. Then 17th January को अगेन वेयर हाउस में परचेस करके गुड्स लेके आए हैं, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज परचेस. कितना यूनिट्स खरीदा? 60 यूनिट्स. व्हाट इज द रेट? सी दिस टाइम द रेट इज डिफरेंट. लास्ट टाइम 40 यूनिट्स 30 रुपीस में खरीदा था. 60 यूनिट्स हमने 28 रुपीस में खरीदा. देन on 20 Jan we have done a sale. Sale means goods will go out. How many unit? 50 unit. And we are doing by FIFO method. तो सेल के टाइम पे बहुत ध्यान रखना, जो पहले खरीदा है वो पहले बाहर जाएगा. एज पर FIFO मेथड हम जब भी सेल करते हैं तो जो हमने सबसे पहले खरीदा है वो सबसे पहले सेल करेंगे. So that we will remember. और कितने में खरीदा बेचा है? At what price we have sold? 35 rupees. We have sold for 35 rupees. And 22 को there is a purchase. 22 Jan purchase 80 units at 29 rupees is the rate per unit. 29 rupees में purchase किया. 25 को there is a sale. 28 को there is a sale. दो और सेल है. कितना यूनिट का? 80 यूनिट का. एंड 20 यूनिट का प्राइस है 33 एंड 34. फिर 30 Jan को अगेन देयर इज अ परचेस ऑफ 100 यूनिट्स. 26 इज द रेट. कितने रेट में परचेस किया? 26 में. एंड 31st January दैट इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ हमने सेल किया 90 यूनिट्स. एंड कितने में सेल किया? 35 रुपीस में सेल किया. दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हाट इज गिवन एंड वी हैव टू प्रिपेयर द स्टॉक लेजर. हमें क्या करना है? we have to prepare the stock ledger. One more information is given here. Stock on hand on 1st January 2014 was 50 units at ₹25 each. Now tell me 1st January 2014 का स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक? इन स्टॉक ऑन हैंड मतलब ये कौन सा स्टॉक है? कैन एनीवन टेल मी विच इज दिस स्टॉक ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर? ये स्टॉक को क्या बोलते हैं? What do we call this stock? Yes, correct. It is known as the opening stock. It is the closing stock of the last year and the opening stock of the current year. तो ये करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है. तो हमारे पास ये हमने लास्ट मंथ में खरीदा होगा कभी या लास्ट ईयर में, बिकॉज ये 1st जनवरी है. तो ये क्लोजिंग स्टॉक है 31st दिसंबर का. This is the closing stock of 31st December. 31st December में ये अनसोल्ड था. तो 1st Jan में जब भी सेल करेंगे एज पर FIFO मेथड, तो पहले ये यूनिट्स को सेल करना पड़ेगा. इसके बाद ही बाकी बाद में जो परचेस किया वो बाद में सेल होगा. गेटिंग माई पॉइंट? कितना प्राइस में सेल किया? 25 रुपीस में. सॉरी परचेस. व्हाट इज द वैल्यू?
हमने कितना 50 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक है एंड द रेट इज 25 ईच. 1 यूनिट इज ऑफ 25 rupees each. Now what we will do, let us start now. Everyone pay attention. Stock register. What are we preparing? स्टॉक रजिस्टर बोला है, तो इस सारे स्टॉक रजिस्टर को हम स्टॉक लेजर भी बोलते हैं. तो इसको आप स्टॉक रजिस्टर भी बोल सकते हो या स्टॉक लेजर भी बोल सकते हो. फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 2014. ये सिर्फ जनवरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, करेक्ट. सो व्हाट वी विल डू, I will just first remove the space. So I will remove the space and then I will show you how to do. Just pay attention here. अब हम register बनाएंगे. What we will do? We will prepare the register. So let me insert the table here. Date, receipt, then issue, then balance. I will show you. Please यहाँ पे ध्यान दो अभी everyone. I want this from all of you that you all should pay attention. I am preparing the format. इसलिए सब लोग ध्यान से देखो. Everyone just pay attention here and do not do anything else. सिर्फ यहाँ पे ध्यान. डेट का पहला कॉलम और इसको हम बोलते हैं रिसीट्स. रिसीट्स भी बोल सकते हैं या परचेसेस भी बोल सकते हैं. गुड्स मिल रहा है एंड इसको बोलते हैं इश्यूज या फिर सेल्स. और यहाँ पे हम निकालते हैं बैलेंस. दिस इज नोन एज बैलेंस. 1 minute, let me just align it properly. तो हमें चाहिए middle align. Okay. So यहाँ पे what we want, इधर हम बोलते हैं units, rate and amount. Units, rate and amount. Units, rate and amount. So this is our format. This is our format. हमें हमारे स्टॉक लेजर में क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि कितना परचेसेस हुआ है, कितना इशू हुआ है एंड व्हाट इज द बैलेंस एट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब व्हाट वी विल पे. सी हियर कि रिसीट मतलब परचेसेस, कि हमने कितना परचेस किया. इशू मतलब सेल्स, one and the same thing. And any period of time, what is the balance, वो भी हमें मालूम होना चाहिए. तो सबसे पहले कौन सा डेट दिया है, टेल मी. व्हाट इज द फर्स्ट डेट गिवन. जनवरी मंथ का है, बट पहला डेट कौन सा दिया है बताओ मुझे. व्हाट इज द फर्स्ट डेट गिवन. क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. देख के बताओ. हम लोग जब भी रजिस्टर बनाएंगे या लेजर बनाएंगे तो डेट वाइज जाएंगे. तो कौन सा पहला डेट दिया है. यस, वेरी गुड. द फर्स्ट डेट गिवन इज 2014 1 Jan. पहला जो डेट दिया है वो 1 Jan है. मुझे बताओ 1 Jan में परचेस हुआ है, सेल हुआ है या क्या है वो. 1 Jan का ट्रांजैक्शन कौन सा है. 1 Jan में क्या हुआ है. इट इज नो, इट इज 1 Jan, इट इज स्टॉक ऑन हैंड. इट इज नॉट अ परचेस, इट इज स्टॉक ऑन हैंड. So, अगर तुम लोग को चाहिए तो हम यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते हैं, बट देन तुम लोग को हर कॉलम में वो लिखना पड़ेगा. दैट आई डोंट वांट, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ. दैट इज ओपनिंग स्टॉक. 1 Jan का जो ट्रांजैक्शन है इट इज ओपनिंग स्टॉक, मीन्स वो बैलेंस है लास्ट ईयर का.
स्टॉक है मतलब वो परचेस भी नहीं है, वो सेल भी नहीं है, वो हमने लास्ट ईयर में कभी परचेस किया है, लास्ट मंथ में कभी परचेस किया है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम बैलेंस साइड में लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक को किधर लिखेंगे हम लोग? बैलेंस में लिखेंगे। वेयर वी विल राइट इन द बैलेंस। हाउ मेनी यूनिट्स? टेल मी, कितना यूनिट्स है? 50 यूनिट्स है। एंड हाउ मच इज द रेट पर यूनिट? हाउ मच इज द रेट पर यूनिट? एक यूनिट का रेट कितना है? 25। अब मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 25, मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 25, हाउ मच यू गेट? 1250। मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 50 इंटू 25, मिला ये आंसर? मिला ये आंसर? सो नाउ दिस इज डन। ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर दिया रजिस्टर में। कहां पे रजिस्टर में रिकॉर्ड किया? इन द बैलेंस कॉलम। कहां पे रजिस्टर किया? ओपनिंग स्टॉक है मींस वो करंट पीरियड का परचेज भी नहीं है और करंट पीरियड का सेल्स भी नहीं है। व्हेन इट इज ओपनिंग स्टॉक, it is not the purchases of the current period, neither the sales of the current period। तो हमने इसको क्या किया? बैलेंस में बताया। इतना हमारे पास बस प्रीवियस मंथ का बचा हुआ है स्टॉक। टिल ईयर एवरीथिंग इज क्लियर? टिल ईयर एवरीथिंग इज क्लियर? ये 1250 कैसे आया? एवरीवन पे अटेंशन हियर। 50 इंटू 25 इज 1250। यहां तक क्लियर है? विच इज द नेक्स्ट डेट? टेल मी, नेक्स्ट डेट क्या है? which is the next date given? 4th Jan. So let us write here 4th Jan। तो मुझे बताओ 4th Jan लिखा, क्या है 4th Jan को ट्रांजैक्शन? इट्स अ परचेस और अ सेल? यस, इट्स अ परचेस। इट्स अ परचेस। हाउ मेनी यूनिट परचेस है? तो we will write in the purchase column। परचेस है, so we will write in the purchase column। देखो इससे पहले हमने क्या किया? क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे ये लाइन में दिया है 1st Jan 2014 50 यूनिट्स एट ₹25 ईच। ये हमारा स्टॉक ऑन हैंड है। स्टॉक ऑन हैंड मतलब ये प्रीवियस ईयर जो परचेस किया था ये वो स्टॉक है। प्रीवियस मंथ में जो परचेस किया था ये वो स्टॉक है। तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में जो हमारे पास स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। उसको हम कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस कॉलम में। कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस कॉलम में। तो हमारे पास कितना यूनिट था? 50 लिखा है यहाँ पे। कितना रेट था? कितने में खरीदा? 25 रुपीज ईच। 50 इंटू 25। टेक योर कैलकुलेटर एवरीवन। कैलकुलेटर इज अलाउड इन FY BCom। आपको कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर इज कंपल्सरी इन FY BCom। सो 50 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1250। यू विल गेट 1250। Now the next date given is 4th Jan। The next date given is 4th Jan। तभी क्या बोला है? 4th Jan को क्या है? 4th Jan को परचेस है। 4th Jan को क्या है? परचेस है। तो हमने परचेस के कॉलम में लिखा हाउ मेनी यूनिट? 40। व्हाट इज द रेट? 30। अमाउंट क्या होगा? 40 इंटू 30 करो। 40 इंटू 30 यू आर गेटिंग 1200। नाउ डायरेक्टली हमारे पास कितना यूनिट बैलेंस है? अभी बताओ हमारे पास बैलेंस कितना स्टॉक है? पहले का 50। पहले का 50 हमारे पास था, वो 1250। अब स्टॉक रजिस्टर में देखोगे तो हमने पहले से जो खरीदा है वो, और जो आज खरीदा वो। आज खरीदा 30 रुपीज में,
तो हमारे पास टोटल इतना बैलेंस है, प्रीवियस पीरियड का 50 और आज जो हमने खरीदा, टुडे व्हाट वी परचेज्ड दैट 40, तो टोटल इज द बैलेंस। ऐसे लिखना है, प्रीवियस पीरियड का भी लिखना है और करंट भी लिखना है। तो टोटल हमारे पास इतना बैलेंस है। यहां तक क्लियर है? हमने 4 जैन दिया था, क्या था 4 जैन को? परचेस, तो परचेस में लिखा 40 यूनिट, 1 यूनिट इज 30, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 1200। एंड बैलेंस में कैसे लिखना है? जो अभी तक हमने सेल नहीं किया वो भी लिखना है, जैसे खरीदा वैसे वही ऑर्डर में। पहले ये 50 यूनिट्स है, फिर आज खरीदा वो 40 यूनिट्स, तो हमने लिख लिया। Now tell me which is the next date? Which is the next date given after 4? After 4, what is the next date? 17th Jan. See, in the balance हमने कुछ भी स्पेशल नहीं किया, हमने जस्ट जो हमारे पास पहले से यूनिट है वो लिखा, उसके बाद जो आज खरीदा वो लिखा, तो हमें हमारा बैलेंस मिल गया। Now, what is the next date? 17th Jan. Next date is 17th Jan. Now, tell me, 17th Jan को क्या हुआ? 17th Jan को क्या है? 17th Jan को again there is a purchase. तो परचेस के कॉलम में लिखो हाउ मेनी यूनिट्स हमने 17th Jan को लिया है। हाउ मेनी यूनिट्स? 60 यूनिट्स। व्हाट इज द रेट? 60 यूनिट में व्हाट इज द रेट? एक यूनिट को कितने में खरीदा? 28 रुपीस में। सो मल्टीप्लाई करो, हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग? अमाउंट यू आर गेटिंग इज 1680। वेरी गुड, 1680। नाउ अगेन गो टू द बैलेंस। हमारे पास पहले से जो हमने खरीदा ये बाकी है, ये हमारे पास पहले से है, तो वो जैसा है वैसा लिख दिया। जैसा जो पहला हमारे पास है वो पूरा लिख दिया। फिर आज हमने कितना खरीदा? 60 खरीदा 28 यूनिट के हिसाब से, एंड उसका अमाउंट है 1680। मींस हमारे रजिस्टर में हमारे पास जितने भी यूनिट्स है जो हमने पहले से खरीद के रखा है, दैट एवरीथिंग जैसे खरीदा, जो पहले खरीदा वो पहले, जो बाद में खरीदा बाद में, जो उसके बाद खरीदा उसके बाद, इट शुड कम इन द सेम सीक्वेंस। सो हमारे पास 50 यूनिट्स पहले से था ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस मंथ का, फिर हमने 40 यूनिट्स खरीदा, फिर आज हमने 60 यूनिट्स खरीदा। अभी तक कुछ भी सेल नहीं हुआ, तो सब कुछ हमारे पास है। ऑल द यूनिट्स आर विथ अस। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एवरीथिंग वी हैव रिटन। जो यूनिट्स हमारे पास है हमने सब लिख दिया। नाउ एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नाउ वी विल गो to our next date. What is the next date? Tell me. Next date क्या है? Next date. What is the next date? 20. 20 को क्या हुआ है? 20th Jan को 20th Jan को there is a sale. तो सेल के कॉलम में लिखो, सेल के कॉलम में लिखो हाउ मेनी यूनिट। फिर नहीं, यहाँ पे लिखने से पहले प्लीज एवरीवन पे अटेंशन हियर नाउ। Now it is very important, all of you have to look here now. यहाँ पे ये चैप्टर में सेल्स को करते वक्त थोड़ा ध्यान देना है। ये कौन सा मेथड है? I forgot to write here under FIFO method. FIFO method, which is the method first in first out. जो हमने पहले खरीदा था वही पहले बाहर जाएगा। So as per FIFO method, what is the assumption? जो हमने पहले खरीदा था वही पहले बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 3 टाइप का यूनिट है।
50 यूनिट, 40 यूनिट एंड 60 यूनिट। टेल मी इसमें से कौन सा यूनिट हमने सबसे पहले खरीदा है, विच इज परचेज्ड फर्स्ट। 50 यूनिट पहले खरीदा है, 40 यूनिट पहले खरीदा है, या 60 यूनिट? यस, यू ऑल आर राइट, हमने 50 यूनिट सबसे पहले खरीदा है। तो एज पर फीफो मेथड जो पहले खरीदा था वही पहले बाहर जाएगा। तो हमें कितना यूनिट सेल करना है, हमें सेल कितना यूनिट करना है, हमें सेल करना है 50 यूनिट्स, हमें सेल करना है 50 यूनिट्स। तो क्या सबसे पहले हमारे पास 50 यूनिट्स है? क्या हम पूरा 50 यूनिट्स दे सकते हैं? एज पर फीफो मेथड जो हमने पहले खरीदा है वही पहले बाहर जाएगा। जो हमने पहले परचेस किया है दैट विल ओनली गो आउट फर्स्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 50, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 50। एंड एक वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे जो यूनिट दिया रहता है ना, इसको अभी कंसिडर नहीं करना है। हमने 50 यूनिट्स 35 रुपीस में सेल किया, बट हम जब भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते, व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक मींस अनसोल्ड यूनिट, तभी हम कभी भी सेल प्राइस नहीं लेते। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। सुना है कभी? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड at cost price और मार्केट प्राइस whichever is less। तो हम जब भी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते हैं तो हम कभी भी है ना ये सेलिंग प्राइस ना यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, कोई भी सेल का ये प्राइस जो दिया होता है ना इसको नहीं देखना है क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त। हमें है ना ये लेजर, ये जो हम लोग पूरा बना रहे हैं ना, ये पूरा स्टॉक लेजर, यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्या फाइंड करना है? ये रजिस्टर में हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, ये वाला प्राइस को मत देखो, इसको नहीं देखना है। समझ में आया? ये 35 रुपीस को नहीं देखना है। अभी मैं बताऊंगी इसको हम ये क्यों दिया, इसको हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। तुम लोगों को बाद में बताऊंगी मैं, अभी सिर्फ ये 35 को इग्नोर करो, इसको मत देखो। ये 50 रुपीस को कितने में खरीदा था हमने? 20। ये 50 यूनिट्स को कितने में खरीदा था हमने? 25 रुपीस में। तो यहाँ लिखेंगे 25 और इधर मल्टीप्लाई करके 1250। हमने 50 यूनिट सेल कर दिया। तो अभी कितना बैलेंस है? टेल मी। हमने 50 यूनिट सेल कर दिया तो हमारे पास कितना बैलेंस है? हमारे पास 40 यूनिट्स बैलेंस है। 30 के हिसाब से 1200 और हमारे पास 60 यूनिट बैलेंस है 28 के हिसाब से, दैट इज 1680। मीन्स हमने 50 यूनिट सेल कर दिया तो अभी हमारे पास कितना बैलेंस है? 40 एंड 60 यूनिट्स। 40 एंड 60 यूनिट्स। सो दिस इज डन। आई होप द सेल इज क्लियर टू यू। हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले खरीदा है वही सबसे पहले बाहर जाएगा। तो 50, 40 एंड 60 में हमने सबसे पहले 50 यूनिट्स परचेस किया था, तो दैट विल गो फर्स्ट एज पर फीफो मेथड। एज पर फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सी द नेम ऑल्सो सेज, जो फर्स्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट जाएगा, जो पहले खरीदा था वो पहले बाहर जाएगा। सो नाउ टेल मी विच इज द नेक्स्ट डेट। हमारा नेक्स्ट डेट क्या है? 22 जैन। विच इज द नेक्स्ट डेट? 22 जैन। क्या हुआ 22 जैन को? 22 जैन को क्या हुआ है? व्हाट हैज हैपेंड ऑन 22 जैन? इट इज अ परचेस, राइट? तो परचेस है कितना यूनिट? 80। कितने रुपीस में? 29 रुपीस में। मल्टीप्लाई करो 80 into 29. How much it is coming? 80 into 29. Are you getting 2320?
Are you getting 2320? 80 multiplied by 29, we get 2320. So now हमारे पास क्या कितना यूनिट बैलेंस है? ये तो पूरा हमने अभी तक सेल नहीं किया, तो ये पूरा हमारे पास बैलेंस है। इसके अलावा जो हमने आज यूनिट परचेज किया 80 यूनिट 29 के हिसाब से, वी हैव 2320. 2320. This purchase is done. Now 22 के बाद which is the next date? 22 के बाद which is the next date? 22 के बाद next date is 25. You can see in the question. 22 के बाद next date is 25. क्या हुआ है? 25 में क्या हुआ है? सेल हुआ है. How many unit? 80 unit. आई हैव टोल्ड यू, मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है, ये जो है ना सेल का जो प्राइस है वो नहीं देखना है, सेल का जो प्राइस है वो नहीं देखना है. तो टेल मी, सेल हमने किया है 80 यूनिट्स. एज पर फीफो मेथड सबसे पहले कौन सा यूनिट आया है? 40, 60 और 80 में. 40, 60 और 80 में सबसे पहले कौन सा खरीदा है? 40 खरीदा है या 60 खरीदा है या 80 खरीदा है? 40 खरीदा है. तो हम क्या करेंगे, जो पहले खरीदा है वो पहले बाहर जाएगा. 40 एज पर 30 होता है 1200. क्या हमें 40 ही सेल करना है? सेल कितना यूनिट करना है? सेल कितना यूनिट करना है? 80 यूनिट करना है. 80 में हमने 40 कर दिया, तो अभी कितना और बाकी है? टेल मी, और कितना सेल करना बाकी है? और 40, 80 में 40 सेल कर दिया, तो अभी भी 40 बाकी है, वो नेक्स्ट लॉट से लेंगे. नेक्स्ट लॉट में कितना है? 60 यूनिट्स. कितना है? 60. तो 60 में से हम 40 ले लेंगे, तो हम लोग का हो गया 40 + 40 80. 60 कितने में खरीदा है? 28 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करो. 40 इंटू 28 कितना होता है? 1120. कितना होता है? 1120. तो बताओ यहाँ कितना बैलेंस बचा? 60 में से 40 चला गया, तो कितना बचेगा? टेल मी, 60 में से 40 सेल कर दिया, तो कितना बचेगा? 20. एक यूनिट 28 का है, तो मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 28. कितना होता है? 20 इंटू 28 560 होता है. और ये लास्ट का जो 80 यूनिट है वो तो हमने अभी तक टच ही नहीं किया, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा. 29 which is equal to 2320. सो यहाँ पे हमने सेल में क्या देखा? जो पहले खरीदा था वो है 40. हम लोग जो भी कभी भी देते हैं, तो जो पहले खरीदता है वो पहले बाहर जाता है, लेकिन हमें 80 यूनिट्स देना है, तो हमने पहले 40 दिया, फिर नेक्स्ट लॉट उसके बाद जो आया है उसमें से 40 दिया, तो अभी हमारे पास 60 में 40 दिया तो 20 बचा. एंड प्राइस यहाँ पे जो रेट दिया है वही रेट यूज करना है. यहाँ सेल के आगे जो रेट दिया है, आई हैव टोल्ड यू फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर इट. फॉर द टाइम बीइंग इसको इग्नोर करो, ये बाद में बताऊंगी मैं क्या कहाँ पे यूज करना है. तो ये भी हो गया. Now we will go to the next date, which is the next date 28th Jan, which is the next date 28th Jan. क्या हुआ है? again 28th Jan को there is a sale. कितना यूनिट? which is the sale 20 unit. Sale is send the which is the sale 20 units. Sale कितने का है? 20 units का. तो tell me, यहाँ पे क्या करेंगे? 20 में से 20 लेंगे या 80 में से 20 लेंगे? टेल मी, अभी हमें 20 यूनिट सेल करना है, तो कहाँ पे से लेंगे? 20 में से लेंगे या 80 में से? एज पर फीफो मेथड जो पहले खरीदा है वही पहले बाहर जाएगा. तो 20 यूनिट चाहिए, तो हम 20 में वो जो पहला वाला 20 है उसमें से ले लेंगे. तो कितना बचा? 80 बचा 29 के हिसाब से. एंड दिस बिकम्स 2320.
इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? 30 जैन। 30 जैन है नेक्स्ट डेट। क्या है ये 30 जैन? परचेस है 100 यूनिट का, 26 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 26, 2600। अभी हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा? जो पहले से हमारे पास है वो फिर से लिखेंगे। जो आज खरीदा 100 वो यहाँ पे लिखा 26 एंड दिस विल बिकम 2600। लास्ट डेट 31st Jan. What is the last date? 31st Jan. What is it? 31st Jan को क्या है? 31st Jan को it is a sale. 31st Jan को it is a sale. बताओ कहां से देंगे? 80 में से देंगे या 100 में से देंगे? Tell me as per sale. लास्ट वाला सेल है तो एज पर फीफो मेथड जो पहले खरीदा वो पहले दे देंगे, मतलब 80 पहले जाएगा 2320। नाउ टेल मी 90 यूनिट सेल करना है, हमने सिर्फ 80 किया तो और भी कितना करना बाकी है? 90 यूनिट सेल करना है तो वो 10 जो बाकी है वो 100 में से लेंगे। तो 100 में से 10 दे दिया तो कितना बचा? 100 में से 10 दे दिया तो कितना बचा? 90 ना। 100 में से 10 दे दिया तो 90 बचा। रेट क्या है? 26, तो ये हो जाएगा 260। मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 26। 100 यूनिट जो लिया वो 26 के रेट में है, तो 90 इंटू 26 कितना बैलेंस बचा? 90 इंटू 26 2340। तो दिस इज द लास्ट ट्रांजैक्शन। तो लास्ट में जो हमारे पास बचता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट डेट में जो हमारे पास बचता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज 90 यूनिट्स एट ₹2340। तो हमारा ये हमें लास्ट में दिखाना है, लिख के ये हमें दिखाना है व्हाट इज इट? क्लोजिंग स्टॉक इज 90 यूनिट्स एट ₹2340। With this sum is done. Thank you very much everyone.